Elizabeth. Later, Prime Minister Modi also met the Indian diaspora in Paris, which had thronged the Prime Minister's hotel. They were not just stationed outside the airport, but also outside the hotel. Post the interaction, Prime Minister also met with the President of the French Senate, Gerard Larcher. Now, the preparations are done and the stage is already set for Prime Minister Narendra Modi's key address to the Indian community at the iconic La Seine Musicale. And for more details, let me quickly bring in my correspondent Sanjay Suri, who's been tracking all the live movements of Prime Minister Modi as he's landed in Paris. Thank you, Sanjay, for joining in. La Seine Musicale, of course, it's an important feature as far as Paris is concerned. Take us through how important this location is before we talk further about the Indian diaspora. Well, this La Seine Musicale right here behind is quite an iconic center in Paris. It is the center for a number of very high-profile events that take place, both political and cultural, and one must add diplomatic. And this was picked as the venue. We have a capacity crowd of well over 1,000 in there, shouting their lungs out. They are in a state of hyper-excitement, waiting for the Prime Minister to come there. And of course, there have been a number of cultural events that have been presented to the audience inside while they wait, and they are underway as we speak. The Prime Minister will be here soon. There will be further presentations before him, and then he will address the people who are gathered there. And of course, they are waiting most keenly to hear what he has to say. Absolutely. And Sanjay, when we talk about the Indian diaspora in France, I've been reading, and what the reports are indicating is that many settlers from Puducherry in India, because remember, Puducherry happens to be one of the French colonies in India. So many people from Puducherry now are settled in France, especially in Paris and areas surrounding Paris. Take us through the Indian community in France. What are the places in France that are occupied, and what have been the kind of contributions of the Indian diaspora? Well, that's a very good question, because people count the Indian community in France in two ways. One, of course, is the historical legacy of colonialism, to put it rather plainly, and people from Puducherry who could come to France on the strength of that old historical connection, to say that politely. And that is a very sizable community, and by some estimates well over 100,000. Others speak of the Indian community and the Indian diaspora, and they're talking about relatively recent migrants post partition, post independence, and that number is estimated variously around 10,000. So these are different estimates. Really, what you're saying is that you're looking at immigration and immigrants differently. But clearly, there are a very large number of Puducherry origin migrants who've been settled here now for generations. And the one thing common to the migration patterns, whether older or more recent, is the extraordinary success of the community. This is a community, as in other parts of the world, that depends minimally on state support. Crime levels are low, prosperity levels are high, education levels are high, a very peaceful community, very rarely in conflict with the police. And that is the reason, other than the success in their professions, that it is a very widely and well-respected community. Absolutely, Sanjay. And when we talk about the community, the Indian community in France, what also makes a sizable population of that Indian community are Indian students. Remember, last year, the French foreign minister had also indicated how France is now planning to welcome close to 20,000 Indian students by the year 2025. When it comes to Indian students now going over to France for studies, there's a lot that France has to offer in terms of opportunities, businesses, even startups. Take us through how France is now becoming a popular choice for Indians, especially Indian students as well. For a start, teaching in English language. The number of French universities is rising all the time that are offering international students internationally recognized courses in English language. You don't have to come and first
learn French to a degree of proficiency before going to university here, and that was very attractive. And then there is an added attraction, and that was added not that long back ago, and it was a result, at least in part, from one of Prime Minister Modi's earlier visits to France, that on completion of study there will be a period of work that will be possible, post study work, and the regulations were eased, and that was an added attraction, and at the least that meant that students could do some work there and recover the money they spent on their education, and also open up prospects of further employment here, which would be good for them and good for France, because if a number of very accomplished students get into French institutions, that is something the institutions would not only wish but would work very hard to solicit. So on all counts, this has been a success story, and it is not for nothing that France is preparing to invite yet more. Absolutely, and let's talk about the event that has been planned. The Indian Gujarati Association is also playing a very significant role over there. What should we also expect during this cultural program that has been planned for Prime Minister Modi? Well, it is underway already, and we've already seen considerable variety. We have seen the Bharatnatyam being performed. We have seen bhajans being sung to different rags, the Ahir Bhairav rag, a presentation of Sri Ramchandra. Then we have had other items that have been presented serially, and we are seeing also going ahead that a Muslim group is here, and they performed before us and for us by way of a sneak preview of what they're doing, and it's a group of Muslims who will be singing Hindu bhajans. So this is an expression of inclusiveness and of secularism that will also be on display here. This is quite a variety of events that we are going to see. Certainly a very clear Gujarati flavor, and why not an event where Modi is the chief guest without a garba somewhere would be unthinkable. Certainly we have that, and people have been preparing on the streets of Paris and rehearsing for just that. So quite a varied package here now. Absolutely, and in fact a lot of hopes have been pinned on this visit by Prime Minister Modi, because many Indians believe that there will be greater impetus given to their businesses as well. But having said that, when we talk about these these Gujarati families or even the Indian families, many Indians are saying that ever since Prime Minister Modi came to power, they've noticed that there's been a change in the perception of Indians. Indians are more respected in France than they were before Prime Minister Modi. Well, as we speak, we have the Prime Minister coming in now, which is why I sort of swiveled around. This is Prime Minister Modi arriving at the event, which is underway here. And of course, this is the moment everyone inside there has been waiting for, with much excitement and with much anticipation. So this is the moment of the evening. The Prime Minister will be there, and of course he will watch many of the cultural performances before he speaks. But you're quite right. A lot of people see that the level and the profile of the Indians here has gone up. The respect for Indians has gone up. And there are two aspects to that. There are two forces, if you like, pushing that profile up. One is the very success of the people who live here. They have done very well in the professions. Talking of the older migrants from Puducherry, we see that new generations have integrated very well, very peacefully, very successfully. They accomplish a good deal in their professions. They have earned a great deal of respect, and that has been one factor. The other has been simply the rise of India itself, almost before we knew it, and many of us who are as senior, to put it politely, as I am, we have seen this for ourselves. Sanjay, I'm so sorry to interrupt you. In fact, we have some breaking inputs coming in. We are now learning that as far as the national capital's flood situation is concerned, Prime Minister Modi has been extremely concerned about the situation in New Delhi and has in fact taken stock on the Delhi flood situation from France. He's dialed Delhi's Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena to inquire about the waterlogging and flood situation in the national
has also spoken to Home Minister Amit Shah about the flood situation in Delhi. For more details, let's quickly go across to Payal, who's joining me on the phone line. Payal, what are the details that you can share with us? What we understand by way of top government sources is the Prime Minister just a short while ago has had a word in detail with the Union Home Minister Mr. Amit Shah, remember, who's been monitoring the flood situation, not just in the national capital, but all over the place, including Himachal. You would have seen, Akansha, that we had a meeting today with Anurag Singh Thakur and also the former Chief Minister of Himachal. He had also had a word with them to understand what the situation really was. And Anurag Thakur is also being dispatched to Himachal to monitor the. Of course, BJP's National President, Mr. JP Nadda, will also be in Himachal for the next couple of days. Apart from that, the Prime Minister has also dialed the Delhi LG and has spoken to him and understood what Delhi is like and what is being done to ensure that maximum rescue and relief operations are in place and people are given as much assistance as possible. So the Home Minister has been able to assure them that enough teams in terms of NDRF teams have been placed at the areas that are required to be. And it has also been assured that the Home Minister is monitoring the situation around the clock. All right, many thanks to you, Payal, for bringing in all those latest inputs. Only goes on to indicate the gravity of the situation as far as the floods in Delhi and NCR are concerned, that the Prime Minister has had to take stock of the situation all the way from France. And with that, let's now quickly shift focus over to France, where Prime Minister's entire cavalcade in a high tide security has finally arrived at that significant theatre where the event of the Indian diaspora is going to be taking place. Let's quickly go across to our guest. I'm joined in by former diplomat Mr. Suresh K. Goyal. Many thanks to you, Mr. Goyal, for joining in. When we talk about Prime Minister's event that's going to be hosted by the Indian diaspora, I mean, this is not a new for the Indian Prime Minister. We've already seen the kind of magic he wields on the Indian diaspora wherever he goes, whether it is Egypt, more importantly, even the United States. It seems like he's almost cast a spell. What does it mean for the Indian community in France per se? I was discussing with CNN News18 Sanjay Suri just a while ago how France is now opening its doors to the Indian community, especially when it comes to Indian students. Two things which are very important from my point of view. Number one, it is conveying through this gathering of the Indian community to welcome him or to organize events for him, the way they had done that in Washington, and the way they had done it before that in Houston, the way they do it actually to clearly convey, number one, how important the Indian community has become to play a role in developing that kind of ties and the relations between India and that country, whether it is UK or it is the United States or it is France, you name the country, and it's a clear message about the role that the Indian community is playing in the relations between India and that country. And number two, I think this is very, very significant, is also the impact that Indian Prime Minister or the government of India has on the Indian community, because after all, if they are playing a role in the relations between the two countries, and India is able to basically cast this kind of an impact on them, it's a clear message that the Indian community present in that country can either further develop the relations, can play a role, etc., etc. I don't want to say directly, but the fact is that it clearly illustrates how the Prime Minister can play around with the Indian community in developing the relations. Now, that is very, very significant. Right. And when we talk about Indians, they always have proven to be India's soft power whenever we talk about Indian diaspora per se. But don't you think that this is also a symbiotic relationship, Mr. Goyal, which is also benefiting from Prime Minister Modi's international clout, because many from the Indian diaspora in France have made it amply clear and they have underscored the significance of Prime Minister's regular visit to France. In fact, the Indian community members in France have said that we've seen the change in the way Indians have been perceived
ever since Prime Minister Modi came to power? I'm sorry, the connection was not very good and I No, lost that's part fine. of it Mr. really. Goel, I wanted But to the know from fact you. is that yes. Yes. I it wanted does- to know how Prime Minister towards Indians when it comes to Europe, especially in France now. It has changed a great deal because, as I was saying before, I think it's sending a signal that even when the Prime Minister is not there, but they have become an instrument, they have become a carrier of that kind of goodwill of India. At the same time, it demonstrates the power that India has over the politics of that country itself, like in the case of the USA. If you recall, Indian community being a large voting percentage in the elections, who can be persuaded or who is such a follower of the Prime Minister, that demonstrates a kind of power that India has in determining the outcome of the political processes in that country. I don't know if I'm making sense or not, but the fact is that the power that now India has in determining the political outcomes, and therefore the role that they play in the soft power, the role that they play in developing the relations. If you recall the nuclear agreement, the lobby that worked, it was the Indian lobby. Again, I think the Indian lobby can play a very, very useful role in the relations between India and France. Absolutely, Mr. Goel. And in fact, let me also quickly go across to CNN News 18, Sanjay Suri, who's reporting from Ground Zero. He's very much present where the Diaspora event is about to take place. Sanjay, take us through what is happening right now, as you were also highlighting that the cavalcade had arrived of Prime Minister Modi over there. I'm sure many from the Indian community have also thronged the venue. As you mentioned earlier, that the cultural program is already underway. In how much time should we now see Prime Minister Modi on the stage? Well, it will not be very long because the Prime Minister does have a very important engagement after this, and that is as important as a meeting with President Macron at the Élysée Palace. That will be a private dinner meeting. It's a crucial meeting where the two leaders will be able to discuss some of the defense arrangements that have been announced. There has been a clearance from the DAC that is not. All right, we seem to be having some audio issues with Sanjay at the moment, but we'll try and quickly go back to Mr. Goel, who continues to stay with us right now. Mr. Goel, as Sanjay was highlighting, he also went on to highlight a very important meet that now is going to, in fact, is the epicenter of Prime Minister's visit to France, and that is this meet between the French President Macron and Prime Minister Modi. A lot rests upon this meet, as we already know in terms of that strategic defense deal. Much has already been offered on the table from France. How significant is this in terms of building India's maritime capabilities? Remember, the Rafale Ms are on offer. There are the submarines as well. How significant will this be in strengthening India's maritime capabilities? Clearly, they are very, very important because there are files, as I believe from the news coming from different quarters, that they are going to be deployed on the aircraft carrier Vikrant that we have at the moment. Right. And then the submarines which we are going to acquire from France, along with the agreement that we are going to sign for the manufacture or the development of some equipment in India. All this together is going to expand and extend the maritime reach of India, and maritime reach in terms of India's presence in Indo-Pacific, in the Indian Ocean. Given the kind of challenge we are facing from our immediate neighbor, both across the borders as well as maritime, is going to present, and I think also expanding our own influence globally.
India does have to play an important role as a maritime power to be able to really be commensurate with its own ambitions. And therefore, I think the acquisition of equipment from France will stretch our influence, will stretch our naval power a great deal on the whole. Sanjay, if I could come to you, before Prime Minister Modi left for France, in one of the interviews to one of the leading news dailies in France, he said that his visit is only going to strengthen and look towards ensuring an open and secure Indo-Pacific. We know that India and France both are walking hand in hand when it comes to the security. All right. In fact, as we speak, this is the last end musical where Prime Minister Modi is now on stage. Let's also listen in to the audio where you can see the entire auditorium has been packed with the Indian community over there. Let's listen. Stand up for the national anthem of France and the national anthem of India. Bharat Mata Ki Jai! And now, ladies and gentlemen, we welcome from the whole team of the Embassy of India here, our beloved, our honorable, हमारे पूजनीय, हमारे अग्रगण्य, हम सब के प्रिय, Shri Narendra Modi ji, our honorable Prime Minister of India. भारत माता की भारत माता की नमस्कार bonsoir वणक्कम सत श्री अकाल केम जो आज का ये नजारा, ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है। ये उत्साह अभूतपूर्व है
और ये स्नेह आत्मीयता की अविरत धारा है। ये स्वागत उल्लास से भर देने वाला है। देश से दूर जब मैं भारत माता की जय का आह्वान सुनता हूं, कहीं से आवाज आती है नमस्कार, तो ऐसा लगता है जैसे घर आ गया हो। और हम भारतीय जहां भी जाते हैं एक मिनी इंडिया जरूर बना लेते हैं। और मुझे आज बताया गया कि आज इस समारोह में बहुत लोग ऐसे हैं जो 11-11, 12-12 घंटे सफर करके यहां पहुंचे हैं। इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है जी? और हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के जमाने में किसी के लिए भी घर बैठ करके मोबाइल फोन पर लाइव टेलीकास्ट सुनना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में इतने दूर से लोगों का आना, समय निकाल करके आना, और मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि मुझे आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी का यहां आने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं इससे पहले भी कई बार फ्रांस आ चुका हूं, लेकिन इस बार मेरा फ्रांस आना और भी विशेष है। कल फ्रांस का नेशनल डे है। मैं फ्रांस की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं फ्रांस के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज दिन में प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी। और कल मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ नेशनल डे परेड का हिस्सा बनूंगा। ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। फ्रांस का नेशनल एंथम कहता है मार्शो मार्शो, यानी लेटेस्ट मार्च लेटेस्ट मार्च। हमारे यहां भी वैदिक काल से जो मंत्र हमें प्रेरणा देता रहा है वो है चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहिए चलते रहिए, लेट्स मार्च लेट्स मार्च। और यही भावना कल हमें नेशनल डे परेड में भी दिखाई देने वाली है। जल, थल,
नभ में भारत की रक्षा करने वाली तीनों सेनाओं के जवान कल परेड में हिस्सा लेने वाले हैं। और ये जो संघ है ना, कुछ विशेष संघ है। संघ भी है, अलग अलग रंग भी है, और चारों तरफ उमंग भी है। ये वाकई अद्भुत है। भारत फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल के उत्सव का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। साथियों, आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। पहली बार किसी देश की प्रेसिडेंसी में ऐसा हो रहा है जब उस देश के कोने कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही है। पूरा G20 समूह भारत के सामर्थ्य को देख रहा है, उससे मंत्रमुग्ध है। क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल सप्लाई चेन हो, आतंकवाद हो, कट्टरवाद हो, हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव, भारत का प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। भारत कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक ही है, उसको व्यक्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। भारत कहता है आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी जो करुणा, जो आत्मीयता हम अपने लिए दिखाते हैं, वही हमें दूसरों को भी दिखानी चाहिए। भारत कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता, यानी हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारे मन एक हो। और भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार है। इसी भावना को लेकर हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर निर्माण कर सकते हैं। इसी भावना के साथ भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे हैं। इसलिए इस अहम समय में फ्रांस भारत के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। और आप जानते हैं कि भारत फ्रांस की इस पार्टनरशिप को
कौन लगातार मजबूत कर रहा है? कौन इसे मजबूत कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम दे रहा है? आप सही नहीं है। ये मोदी नहीं कर रहा है। ये सब आप लोग कर रहे हैं। हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट दोनों देशों को लोगों के बीच आपसी विश्वास इस साझेदारी का सबसे मजबूत आधार है। यहां नमस्ते फ्रांस फेस्टिवल होता है तो भारत में लोग बॉन्सो इंडिया का आनंद उठाते हैं। हम दोनों देशों की हेरिटेज हो या हिस्ट्री, आर्ट हो या एस्थेटिक्स, क्राफ्ट हो या क्रिएटिविटी, कुजीन हो या कल्चर, फैशन हो या फिल्म, ये सब हमें जोड़ते हैं। ये सब हमें साथ लाते हैं। फ्रांस के फुटबॉलर उनकी पॉपुलैरिटी तो आप इंडिया आकर के देखिए। किलियन मापे के जितने फ्रेंड्स फ्रांस में नहीं होंगे, उससे ज्यादा वो भारत के युवाओं में सुपरहिट है। साथियों, मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। करीब करीब 40 साल पहले गुजरात में अहमदाबाद में फ्रांस के एक कल्चरल सेंटर अलायंस फ्रांसे की शुरुआत हुई थी और भारत में फ्रांस के उस कल्चरल सेंटर का पहला मेंबर आज आपसे बात कर रहा है। और मजा इस बात की है कि कुछ साल पहले फ्रांस सरकार ने पुराने रिकॉर्ड्स में से मेरा वहां का आई कार्ड वो निकालकर उसका जेरोक्स मुझे दिया था और वो उपहार मेरे लिए आज भी अनमोल है। साथियों, भारत और फ्रांस के ऐतिहासिक रिश्तों पर कहने के लिए मेरे पास इतना कुछ है, बहुत लंबा समय निकल जाएगा। फिर आपका क्या होगा? मैं जब 2015 में फ्रांस आया था, नौ शपेल गया था, तब मैंने वहां प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए हजारों भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। सौ साल पहले ये भारतीय सैनिक
फ्रांस के गौरव की रक्षा करते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए थे। तब ये बड़ी इमोशनल पल है दोस्तों। तब जिन रेजिमेंट से उस रेजिमेंट के जवानों ने यहां युद्ध में हिस्सा लिया, उन्हीं में से एक पंजाब रेजिमेंट कल यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने जा रहे हैं। सौ साल का ये इमोशनल कनेक्ट सर्वोच्च बलिदान देने की परंपरा किसी की भलाई के लिए, ये कितनी बड़ी प्रेरणा है दोस्तों। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व न हो। उस समय निभाए गए कर्तव्य को, समर्पण को इस धरती पर आज इतने गौरव से, सम्मान से याद किया जा रहा है। थैंक यू। मुझे विश्वास है आज आप भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, उस योगदान को मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं। आज आप जो कर रहे हैं उस कर्तव्य भाव को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, फ्रांस का गौरवगान करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। दुनिया को इन 3 शब्दों की शक्ति समझाने वाला देश फ्रांस है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। जिस समय विश्व के अधिकांश देश भारत को सिर्फ आधिपत्य जमाने की दृष्टि से देखते थे, तब नोबेल पुरस्कार विजेता रोमा रोला ने कहा था, इंडिया इज द मदर ऑफ आवर सिविलाइजेशन। भारत का हजारों वर्ष पुराना इतिहास, भारत का अनुभव विश्व कल्याण के लिए भारत के प्रयासों का दायरा बहुत बड़ा है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और भारत मॉडल ऑफ डायवर्सिटी भी है। ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। साथियों, हमारे यहां कहावत है
कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। यानी हर कुछ दूरी पर भारत में पानी का स्वाद बदल जाता है और वाणी यानी लैंग्वेज भी बदल जाती है। भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं हैं, 1000 से ज्यादा बोलियां हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में हर रोज 32,000 अलग अलग न्यूज़पेपर छपा करते हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में 900 से ज्यादा न्यूज ब्रॉडकास्ट टीवी पर न्यूज ब्रॉडकास्ट होते हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में करीब करीब 400 रेडियो चैनल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं। भारत में आज भी लिखने के लिए अनेक लिपियां हैं, स्क्रिप्ट्स हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि भारत अपनी इस महान परंपरा को आज भी जीवंत बनाए हुए है। भारत के स्कूलों में, भारत के अलग अलग कोनों में करीब करीब 100 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है। और इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है कि दुनिया की सबसे पुरानी तमिल भाषा भारत की भाषा है, हम भारतीयों की भाषा है। और साथियों, भारतीय भाषाओं की इस डायवर्सिटी का आनंद अब दुनिया भी ले रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, टेनिस लीजेंड रॉजर फेडरर को विंबलडन ने थलाइवा कहा था। यही डायवर्सिटी हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज इसी ताकत के दम पर हर भारतीय अपने सपने पूरे कर रहा है, देश और दुनिया को आगे बढ़ा रहा है। आज कौन ये सुनकर गर्व से नहीं भर जाएगा कि भारत 10 साल में दुनिया की 10वीं से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। और ये गर्व सिर्फ भारतीयों को ही नहीं होता है। आज पूरी दुनिया ये विश्वास करने लगी है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में देर नहीं लगेगी। आपने
हाल में आई यूएन की एक रिपोर्ट भी जरूर देखी होगी। उस रिपोर्ट में यूएन कहता है सिर्फ 10-15 साल के भीतर ही भारत ने 415 मिलियन यानी लगभग 42 करोड़ देशवासियों को 42 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आप कल्पना कर सकते हैं 415 मिलियन 415 मिलियन यानी ये पूरे यूरोप की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ये पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। आईएमएफ की भी एक स्टडी कहती है कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी अब खत्म होने के कगार पर है। भारत जब इतना बड़ा काम करता है तो इसका फायदा सिर्फ हमें ही नहीं, सिर्फ भारत को ही फायदा होता है ऐसा नहीं, लेकिन पूरी मानवता को लाभ होता है। भारत के आगे बढ़ने से दुनिया के डेवलपमेंट पैरामीटर्स बदलते हैं, उनमें सुधार में एक उछाल आ जाता है और दुनिया के दूसरे गरीब देशों को भी विश्वास आता है कि हां, हालात बदल सकते हैं, गरीबी दूर हो सकती है। साथियों, फ्रांस की ये धरती इस बात की गवाह है कि किसी भी देश में परिवर्तन के पीछे परिश्रम होता है, उस देश के नागरिकों का पसीना होता है। भारत की धरती भी आज एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रही है। इस परिवर्तन की कमान भारत के नागरिकों के पास है, भारत की बहनों बेटियों के पास है, भारत के युवाओं के पास है। आज पूरा विश्व भारत के प्रति नई उम्मीद, नई आशा से भरा हुआ है। ये आशा, ये उम्मीद ठोस नतीजों में बदल रही है और इसकी एक महत्वपूर्ण ताकत है भारत का ह्यूमन रिसोर्स। ये ह्यूमन रिसोर्स संकल्पों से भरा हुआ है, साहस करने की वृत्ति वाला है। ये भारत की डेमोक्रेटिक मानवता के कल्याण के लिए मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहा है। साथियों, आज का भारत अपनी वर्तमान चुनौतियों, दशकों से चली आ रही समस्याओं, उनका स्थायी समाधान कर रहा है। भारत ठान के बैठा है कि ना कोई अपॉर्चुनिटी गंवाएंगे और ना ही एक पल का समय गंवाएंगे। हम पूरी ताकत से
देश के भविष्य को उज्जवल बनाने, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में जुटे हैं। और मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, मैं भी संकल्प लेकर के निकला हूं। शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए। साथियों, आज टेक्नोलॉजी के प्रभाव को हम पल पल महसूस करते हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आज भारत के 25,000 से अधिक स्कूलों में 80 लाख से ज्यादा बच्चे अटल टिंकरिंग लैब्स में इनोवेशन की एबीसीडी सीख रहे हैं। हमने 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों को देखते हुए नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। आज का भारत विमेन लेड डेवलपमेंट को आधार बनाकर आगे चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ एक ट्राइबल विमेन, एक आदिवासी महिला भारत का प्रेसिडेंट के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। हमारा नेतृत्व कर रही है। आज भारत में लड़कियां भी हर सेक्टर में लीडरशिप की भूमिका में दिख रही है। हायर एजुकेशन में गर्ल्स एनरोलमेंट लगातार बढ़ रहा है और मुझे खुशी है कि यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने आए दस्ते में कई विमेन ऑफिसर्स हैं, विमेन पायलट शामिल है। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया टेक्नोलॉजी और टैलेंट के दम पर ही आगे बढ़ेगी। भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी का ये बहुत बड़ा आधार है। हमारा स्पेस प्रोग्राम इसका प्रमाण है। थुम्बा में जब साउडिंग रॉकेट स्टेशन के निर्माण की बात आई तो फ्रांस ही था जो मदद के लिए आगे आया। उसके बाद से हम दोनों देशों ने स्पेस सेक्टर में बहुत लंबा सफर तय किया है। आज हम एक दूसरे के सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। खुशी होगी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है।
साथियों, स्पेस की तरह ही ऐसे अनेक सेक्टर्स हैं जिसमें भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप दुनिया को नई दिशा देने में मदद कर सकती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया को बहुत कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। अब ऐसी पार्टनरशिप हम क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, सर्कुलर इकोनॉमी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ऐसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में सशक्त करने का काम साथ मिलकर कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, भारत और फ्रांस मिलकर बहुत लंबे समय से आर्कियोलॉजिकल मिशन पर भी काम कर रहे हैं और इसका विस्तार चंडीगढ़ से लेकर लद्दाख तक फैला हुआ है। साथियों, भारत फ्रांस पार्टनरशिप को मजबूत करने वाला एक और सेक्टर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंडस्ट्री 4.0 उसका भी बहुत बड़ा आधार है। आज दुनिया का, और आपको जरूर गर्व होगा ये सुनकर के, आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से। खाली जेब, सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। आज भारत में बैंकिंग सर्विस 24/7 एनी टाइम एनीवेयर लोगों की फिंगर टिप पर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नेंस का हिस्सा बन चुका है। भारत का यूपीआई हो या फिर दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये देश में बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। और मुझे खुशी है कि भारत फ्रांस इस दिशा में भी मिलकर काम कर रहे थे। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा।
हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन आपकी आवाज ठीक नहीं कर सकता है। साथियों, अब से कुछ देर बाद यहां, यानी कुछ हफ्ते महीने लग सकते हैं, यहां सरजी प्रीफेक्चर में भारत के महान संत तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। और संत तिरुवल्लुवर जी ने कहा था, इंद्रू पोड़ुदिन पेरित उवक्कुम तन मगैने चांड्रोन एनकेट ताय। तमिल भाषी वाले मित्र तो समझ गए, लेकिन औरों को बताता हूं, इसका अर्थ बहुत ही मार्मिक है। और तिरुवल्लुवर जी ने सदियों पहले ये ज्ञान हमें दिया है। इसका मतलब है, जब एक मां अपनी संतान की प्रशंसा एक विद्वान के रूप में सुनती है, तो मां को इतना आनंद होता है, मां इतनी खुश होती है, जितना उसके जन्म के समय भी नहीं हुई थी। यानी संतान के जन्म पर जितनी खुशी हुई, उससे ज्यादा खुशी जनता की अपने संतान की सफलता पर होती है। मां के लिए कहा है। और इसलिए जब आप विदेश में नाम कमाते हैं, जब दुनिया आपकी प्रशंसा करती है, तो मां भारती को भी वैसी ही खुशी होती है। विदेशी धरती पर मां भारती को अपने हृदय में रखने वाली मां भारती के हर संतान को मैं भारत का ब्रांड एम्बेसडर मानता हूं। आप भारत के राष्ट्रदूत हैं। मैं जानता हूं कि भारतीय कहीं भी रहे, लेकिन अपना दिल भारत के लिए भी धड़कता है। मैं अभी स्पेस की चर्चा कर रहा था और चिल्ला रहे थे आप लोग, चंद्रयान चंद्रयान चंद्रयान। मतलब आप है यहां, लेकिन दिल आपका चंद्रयान में लगा हुआ है। इसलिए ही फ्रांस सहित पूरी दुनिया में फैला हुआ हमारा जो इंडियन डायस्पोरा, उस इंडियन डायस्पोरा ने रेमिटेंस का नया रिकॉर्ड बना दिया है। आप लोगों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बताऊं आपको? आपको पता नहीं है ना? हाँ। कोई बात नहीं, आपके पराक्रम के गीत भी मैं गाता रहता हूं। भारत दुनिया का पहला देश है जहां विदेश में रहने वाले भारतीय डायस्पोरा के माध्यम से एनुअल रेमिटेंस $100 बिलियन को पार कर चुकी है।
और खुशी की बात है कि आपका ये योगदान निरंतर बढ़ रहा है। लेकिन मेरा आपसे एक और आग्रह है। मैं आपसे आग्रह तो कर सकता हूं ना? कहने में क्या जाता है? मोदी थोड़ा पूछने के लिए आने वाला है। मेरा आपसे आग्रह है, आपको अब भारत में निवेश के लिए भी पूरे उत्साह से आगे आना होगा। भारत अब अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। इसमें आपकी भूमिका भी बड़ी है। आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उससे जुड़ी संभावनाओं को जरूर भारत में एक्सप्लोर करें। आज हर इंटरनेशनल एजेंसी कह रही है कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत ब्राइट स्पॉट है। भारत में इन्वेस्टमेंट की अभूतपूर्व अपॉर्चुनिटी बन रही है। आप भारत में इन्वेस्ट करिए। और आप जो जब कह रहा हूं ना, तो बाद में शिकायत मत करना कि मोदी ने तो बताया ही नहीं था। अभी अवसर है, और मैंने तो लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। और जो पल जल्दी पहुंचेगा वो ज्यादा लाभ उठाएगा, जो देर से आएगा वो इंतजार करेगा। अब मौका लेना, कितना जल्दी लेना है, आप पर मैं छोड़ देता हूं। साथियों, इसलिए आइए और भारत में निवेश करिए। भारत सरकार विदेशों में बसे या काम कर रहे भारतीयों की सुविधा और सुरक्षा, इसके लिए भी पूरी तरह कमिटेड है। जंग का मैदान हो या फिर प्राकृतिक आपदा, भारत अपने नागरिकों को संकट में देखकर सबसे पहले एक्शन में आता है। यूक्रेन हो या सूडान, यमन हो या अफगानिस्तान, इराक हो या नेपाल, हमने भारतीयों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगाई है। विदेश में रह रहा हर भारतीय हमारे लिए उतनी ही प्राथमिकता है जितना हिंदुस्तान में रहने वाला मेरा देशवासी है। कुछ वर्ष पहले जब नीति आयोग बना, तो हमने इंडियन डायस्पोरा के सामर्थ्य और योगदान को उचित स्थान दिया है। इसमें मुझे कहते हुए खुशी है कि रीयूनियन आइलैंड में ओसीआई कार्ड को लेकर जो दिक्कतें थी, अब वो दूर हो गई है। अब वहां ओसीआई कार्ड इश्यू होने लग गए हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्टिनिक और ग्वादेलूप में भी इसका समाधान निकाला जाए। साथियों, फ्रांस सहित अनेक देशों में अनेक साथी ऐसे हैं जो एकेडमिक से जुड़े हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, टीचर है, प्रोफेसर्स हैं। मैं जब विदेश में ऐसे एकेडमिशियंस और प्रोफेशनल से मिलता हूं, तो वो भी अक्सर कहते हैं कि उनके पास जो अनुभव है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, उसे भारत के साथ कैसे जोड़ सकते हैं।
और मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं, इनकी इस इच्छा को भी हमने मान रखा है। ऐसे साथियों के लिए भारत के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना अब आसान किया गया है। पिछली बार जब मैं फ्रांस आया था, तब तय हुआ था कि फ्रांस में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाएगा। अब ये भी निर्णय लिया गया है कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीयों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा। भारत सरकार ने फ्रांस सरकार की मदद से मार्से में नया कॉन्सुलेट खोलने का भी फैसला किया है। इससे भी आप सभी की सुविधा और बढ़ेगी। साथियों, मेरा फ्रांस के अपने दोस्तों से, यहां के नागरिकों से एक और आग्रह भी है। भारत इतना विशाल है, इतनी विविधताओं से भरा है कि हम भारतवासियों के लिए भी इसे पूरी तरह से देखने समझने के लिए एक जन्म कम पड़ जाता है। ऐसे विशाल भारत को देखने के लिए आज दुनिया उत्सुक है। आपको अपने इंटरेस्ट का कुछ न कुछ भारत में अवश्य मिलेगा। भारत में टूरिज्म का विस्तार साइट सीइंग से कहीं ज्यादा है। आप भारत की डायवर्सिटी देखेंगे तो भारत के दीवाने हो जाएंगे। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से लेकर घने जंगलों तक, तपते रेगिस्तान से लेकर खूबसूरत समुद्र तटों तक, एडवेंचर स्पोर्ट से लेकर ध्यान और योग उसके केंद्रों तक, भारत के पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ देने के लिए है। भारत की इस डायवर्सिटी को फील करने के लिए, उसे समझने के लिए हमारे फ्रेंच दोस्तों को भारत लाना, ये आप सबकी जिम्मेवारी है। आप जितनी ज्यादा मदद उनकी करोगे, वो ज्यादा आएंगे। मेरे भारत के आप मेरे भाई बहन, मेरे इंडियन डायस्पोरा इस काम को बखूबी कर सकते हैं। जिस तरह मोबाइल में या कंप्यूटर में एक्सेस कोड या पासवर्ड डालने के बाद एक नई दुनिया खुल जाती है, वैसे ही इंडियन डायस्पोरा भारत का एक्सेस कोड है, पासवर्ड है। भारत में टूरिज्म बढ़े, इसे भी आप अपना मिशन बनाइए। भारत आने का मतलब है हजारों साल की विरासत का अनुभव करना, इतिहास का अनुभव करना। आप भारत आएंगे तो भारत की विरासत के साथ साथ ही विकास की भी गति देखेंगे। साथियों,
हम संकल्प करें, हमारी पूरी क्षमता से, हमारे अनुभव से, हमारे संपर्कों से, संबंधों से फ्रांस के नागरिकों को बहुत बड़ी मात्रा में भारत के साथ जोड़े। आप जब आए तो उनको भारत लेके आए, आप उनको भारत जाने के लिए प्रेरित करें। हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा तब सिर्फ टूरिज्म नहीं बनता है, वो तो होता ही जाता है, लेकिन उससे जो अपनेपन का सामर्थ्य पैदा होता है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी की एक अनमोल विरासत बन जाती है। और मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप कभी इसमें पीछे नहीं रहेंगे। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, आप सबके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी को हम धन्यवाद देते हैं। उनके भावपूर्ण, हृदय स्पर्शक एवं प्रेरणापूर्ण इस शब्दों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। We thank our honorable Prime Minister du fond du cœur. On remercie notre Premier ministre de l'Inde, Shri Narendra Modi ji. Vande Mataram. Et vive la France! Et vive la collaboration avec les diasporas indiennes. Thank you so much to all of you for being here today. From the whole team, we thank you, and please be seated, and you will be guided to go out in a short while. For now, please kindly be seated. Myself. So, a historic address by Indian Prime Minister Narendra Modi at the La Scène Musicale, which, let me tell you, is a performing arts centre located right at the scenic Seine River in the western suburbs of Paris. And this, as we all know, is Prime Minister Modi's first day. But he, during his speech, touched upon every aspect of the existing and rather thriving ties between India and France. Not only did he make a special outreach to the Indian community in France, he also spoke about how far the relationship between India and France goes. He, in fact, touched upon the kind of monumental contribution that the Indian Army has made to France, especially when it comes to World War I, when the Punjab contingent of the Indian Army, close to 1 million soldiers, had in fact gone and participated in World War I. And he also spoke about the significance of the Indian Army when it comes to the Bastille Day Parade, which will be taking place tomorrow with Prime Minister Modi as the guest of honor. He also requested the Indian community in France to come and invest in India. He also spoke about the digital payment between the two countries. He's spoken about the launch of UPI in France as well. Let's also listen in to some very significant reactions coming in from the Indian community in France. दिल को उन्होंने छू लिया, बहुत अच्छा लगा। बढ़ता है आप लोगों का? हमें बहुत अच्छा लगा। बस हम ये कह सकते हैं, हम क्या कहें कि उन्होंने हमारे देश का बहुत कुछ किया है, बहुत डिवोशन से कर रहे हैं। हमें आज, हम पहले थोड़े डाउटफुल थे उनके बारे में, मगर आज उनको सुन के हमें समझ में आ गया है कि उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने भारत बुलाया है आपको इन्वेस्ट करने के लिए? हाँ जी, हम तो टीचर हैं, हम तो जाते रहते हैं इंडिया। जाते रहते हैं? हाँ, हम तो जाते हैं। टूरिज्म को भी बढ़ाना है वहाँ के? हाँ, टूरिज्म हमें ज़्यादा करना है। हम तो भारत में, हमारा दिल तो भारत में ही है। हम तो जाते रहते हैं, इधर 40 ईयर्स से रह रहे हैं, तब भी हम इंडिया जाते रहते हैं। हाँ, मगर हमें बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार।
quickly go across to our correspondent Sanjay Suri, who's been tracking all the latest developments in France as far as Prime Minister's movements are also concerned. In fact, Sanjay is stationed currently at La Scène Musicale. Sanjay, that was a historic address, and you can only see by the kind of reactions we are getting in from members of the Indian diaspora over there. It's a heartwarming moment for all of them. In fact, many of them seem extremely emotional. Well, you know, consider that it's a very carefully crafted address. It is an address, it is a speech that is intended to bring certain results. He is touching certain nerve spots, certain soft spots, and he is working them, and clearly he is working them for the interest of India. And invest in India, that India is a success story, to come as tourists, spend in India, to bring other people they know, other French people they know as tourists. That is one part of the message, that India is a success story, a growing story. He would like them to own that success, to come back and add to that success, to have India grow with them through their investment and their interests, and that there is something in it for them because they will gain from it. That is at one level. Fundamentally, it's really working at a somewhat deeper level as well, because this is a message also going into India, and that is a message that आज का ये नजारा, ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है। ये उत्साह अभूतपूर्व है और ये स्नेह आत्मीयता की अविरत धारा है। ये स्वागत उल्लास से भर देने वाला है। देश से दूर जब मैं भारत माता की जय का आह्वान सुनता हूं, कहीं से आवाज आती है नमस्कार, तो ऐसा लगता है जैसे घर आ गया हो। और हम भारतीय जहां भी जाते हैं एक मिनी इंडिया जरूर बना लेते हैं। और मुझे आज बताया गया कि आज इस समारोह में बहुत लोग ऐसे हैं जो 11-11, 12-12 घंटे सफर करके यहां पहुंचे हैं। इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है जी? और हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के जमाने में किसी के लिए भी घर बैठ करके मोबाइल फोन पर लाइव टेलीकास्ट सुनना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में इतने दूर से लोगों का आना, समय निकाल करके आना, और मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि मुझे आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी का यहां आने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं इससे पहले भी कई बार फ्रांस आ चुका हूं, लेकिन इस बार मेरा फ्रांस आना और भी विशेष है।
कल फ्रांस का नेशनल डे है। मैं फ्रांस की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं फ्रांस के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज दिन में प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी। और कल मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ नेशनल डे परेड का हिस्सा बनूंगा। ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। फ्रांस का नेशनल एंथम कहता है, मार्शो मार्शो, यानी लेटेस्ट मार्च, लेटेस्ट मार्च। हमारे यहां भी वैदिक काल से जो मंत्र हमें प्रेरणा देता रहा है वो है चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहिए, चलते रहिए, लेट्स मार्च, लेट्स मार्च। और यही भावना कल हमें नेशनल डे परेड में भी दिखाई देने वाली है। जल, थल, नभ में भारत की रक्षा करने वाली तीनों सेनाओं के जवान कल परेड में हिस्सा लेने वाले हैं। और ये जो संघ है ना, कुछ विशेष संघ है। संघ भी है, अलग अलग रंग भी है, और चारों तरफ उमंग भी है। ये वाकई अद्भुत है। भारत फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल के उत्सव का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। साथियों, आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। पहली बार किसी देश की प्रेसिडेंसी में ऐसा हो रहा है जब उस देश के कोने कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही है। पूरा G20 समूह भारत के सामर्थ्य को देख रहा है, उससे मंत्रमुग्ध है। क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल सप्लाई चेन हो, आतंकवाद हो, कट्टरवाद हो, हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव, भारत का प्रयास
दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। भारत कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक ही है, उसको व्यक्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। भारत कहता है आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी जो करुणा, जो आत्मीयता हम अपने लिए दिखाते हैं, वही हमें दूसरों को भी दिखानी चाहिए। भारत कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता, यानी हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारे मन एक हो। और भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार है। इसी भावना को लेकर हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर निर्माण कर सकते हैं। इसी भावना के साथ भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे हैं। इसलिए इस अहम समय में फ्रांस भारत के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। और आप जानते हैं कि भारत फ्रांस की इस पार्टनरशिप को कौन लगातार मजबूत कर रहा है? कौन इसे मजबूत कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम दे रहा है? आप सही नहीं है। ये मोदी नहीं कर रहा है, ये सब आप लोग कर रहे हैं। हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट दोनों देशों को, लोगों के बीच आपसी विश्वास, इस साझेदारी का सबसे मजबूत आधार है। यहां नमस्ते फ्रांस फेस्टिवल होता है तो भारत में लोग बॉन्सो इंडिया का आनंद उठाते हैं। हम दोनों देशों की हेरिटेज हो या हिस्ट्री, आर्ट हो या एस्थेटिक्स, क्राफ्ट हो या क्रिएटिविटी, कुजीन हो या कल्चर, फैशन हो या फिल्म, ये सब हमें जोड़ते हैं, ये सब हमें साथ लाते हैं। फ्रांस के फुटबॉलर, उनकी पॉपुलैरिटी तो आप इंडिया आकर के देखिए। किलियन मापे के जितने फ्रेंड्स फ्रांस में नहीं होंगे, उससे ज्यादा वो भारत के युवाओं में सुपरहिट है। साथियों,
मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। करीब करीब 40 साल पहले गुजरात में, अहमदाबाद में फ्रांस के एक कल्चरल सेंटर अलायंस फ्रांसे की शुरुआत हुई थी और भारत में फ्रांस के उस कल्चरल सेंटर का पहला मेंबर आज आपसे बात कर रहा है। और मजा इस बात की है कि कुछ साल पहले फ्रांस सरकार ने पुराने रिकॉर्ड्स में से मेरा वहां का आई कार्ड वो निकालकर उसका जेरोक्स मुझे दिया था और वो उपहार मेरे लिए आज भी अनमोल है। साथियों, भारत और फ्रांस के ऐतिहासिक रिश्तों पर कहने के लिए मेरे पास इतना कुछ है